All right, let's just bring you up to speed of all the big developments. It's been a roller coaster of a verdict day. And guess what? 13 hours since the ballot box opened, we still don't really know who exactly may just be in the pole position. The BJP-led NDA were projected to surpass their 2019 tally of 350 by almost all pollsters. Some exit polls even predicted 400 par dream coming true. However, the reality is in stark contrast as compared to the predictions. The leads and the results indicate Narendra Modi is on course to become the Prime Minister for a record equaling third term. NDA has the numbers on their side. Preparation is set to begin at Rashtrapati Bhavan starting tomorrow, with the oath taking of a new Prime Minister and his cabinet to take place possibly by June 9th. While the Prime Minister is terming this as a historic feat, the Congress says this mandate is against Modi, and the public has given him a befitting reply. However, unlike 2014 and 2019, the future of BJP is in the hands of two alliance partners, Chandrababu Naidu and Nitish Kumar, both notoriously famous for switching sides as per their political convenience. The BJP is confident both these leaders will remain in the NDA ranks. Chandrababu Naidu and Nitish Kumar are both likely to fly to the capital, that's Delhi, to meet the BJP top brass tomorrow. However, the opposition is already making beelines to them. The Congress party has assured to provide special status to Andhra Pradesh should India bloc form the next government. The special status has been the biggest demand by Chandrababu ever since the bifurcation of Andhra and Telangana in 2014. And even as all of this is happening and Prime Minister Modi, in fact Narendra Modi, has called a third term for himself as a historic feat, the opposition, including Mamata Banerjee, calling it a verdict against him, have called for his resignation. Listen in to the big reactions that have come in. We're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। अब अगर किया है तो किया है। फिलहाल तो मुझे लगता है हमें जोड़ तोड़ की हुकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करनी चाहिए। प्री पोल अलायंसेस जो रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहिबा को प्री पोल अलायंस के तौर पे जो है अपना फैसला करना चाहिए और जो लोगों का फैसला है वो हमें तस्लीम करना चाहिए।
আমি খুশি মোদিজি সিঙ্গেল লার্জেস্ট মেজরিটি পায়নি, উনি ক্রেডিবিলিটি লস করেছেন, ওনার ইমিডিয়েট প্রধানমন্ত্রী থেকে রেজিগনেশন দেওয়া উচিত। এখন তাকে পায়ে ধরতে হচ্ছে টিডিপি আর পায়ে ধরতে হচ্ছে নীতিশ, বাট এদের আমি খুব ভালো করে চিনি, এরা ইন্ডিয়াটাকে ভাঙতে পারবে না। And let us now try and decode what led to this earth-shattering rise of India bloc. Quite shocking, as they themselves would have thought at some point, and a shocking fall of the BJP as well. Starting with Uttar Pradesh, which has been the fortress of BJP in 2014 and 2019. Every pollster predicted 70 seats or thereabouts for the BJP-led NDA, while they projected India bloc to struggle to even get double figures. The verdict, however, has stunned all of us into silence. Akhilesh's Samajwadi Party has turned out to be the king of these elections. They are winning more seats than even the BJP on their own. Even the Congress, for all their past frailties, has performed pretty formidably. They are on course to win 7 seats, including the coveted Amethi, which went the BJP way in 2019 when Smriti Irani defeated Rahul Gandhi in pretty humiliating numbers. However, this time it isn't a Gandhi but a long-time family loyalist. KL Sharma is the giant slayer. मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व अपने यूपी पे है। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूँ कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। मैं समझती हूँ सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है, उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। And the grand killer from Amethi, Congress's KL Sharma has stunned everyone with his outstanding performance against BJP's Smriti Irani. Mirror Now's executive editor Shreya Dondial had an exclusive conversation with the newsmaker. You don't want to miss this. किशोरीलाल जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आपको बहुत बहुत बधाई। अब मेरे को याद है जब आपका नाम अनाउंस किया था अमेठी से तो आप खुद ही घबरा गए थे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस हैज वर्कड आउट वेरी वेल फॉर यू किशोरीलाल जी। ये हुआ कैसे? आप तो जायंट किलर बन गए। नहीं, ये तो परिवार का निर्णय था, तो मैं उसको कबूल किया कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं तो मेरे को लड़ना है तो लड़ूंगा, क्योंकि मेरा काम 40 साल से लड़ाने का ही रहा एक्चुअली। ठीक है, तो अपना इलेक्शन लड़ने में थोड़ी घबराहट तो होती है, लड़ाना बहुत आसान है, लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा घबराहट थी, लेकिन प्रियंका जी आई, राहुल जी आए, अखिलेश जी आए, खड़गे जी आए, इन्होंने जीत मेरी आसान बना दी। किशोरीलाल जी आप कह रहे हैं आप थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन एक दो बार तो मैं भी आपसे मिली हूँ, लेकिन कई पत्रकार जो अमेठी बहुत रेगुलरली आते हैं बोलते हैं देखिए आप लोग सोच रहे हैं दैट ही इज अ अंडरडॉग। बात यह है कि किशोरीलाल जी अमेठी का चप्पा चप्पा जानते हैं और किशोरीलाल जी अमेठी में लगभग सब लोगों को जानते हैं, तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मत सोचिए कि स्मृति ईरानी क्योंकि बीजेपी से आती हैं, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया है, इसका ये मतलब नहीं है दिस इज अ डन डील। नहीं, देखिए मैं ये कहूँगा कि गांधी परिवार यहाँ के अमेठी के रोम रोम में बसा है। ठीक है, तो ये अगर कोई सोचता है कि यहाँ गांधी परिवार कुछ नहीं है तो गलत उसका सोचना है। ठीक है,
और गांधी परिवार को अमेठी और रायबरेली में अंडर एस्टिमेट करना ये बहुत बड़ी भारी भूल होती है लोगों की। तो आपको लगता है कि स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को अंडर एस्टिमेट किया अमेठी में? मैं उनका तो नाम नहीं लूंगा, मैंने बात अपनी कह दिया। अच्छा, एक बात बताइए कि इन हाइंडसाइट बहुत लोग कह रहे थे किशोरी लाल जी, एंड आई नो यू आर क्लोज टू द फैमिली, आपने 40 साल से जो है गांधी परिवार का काम संभाला है, अमेठी में इलेक्शंस लड़वाए हैं। कई लोगों ने कहा था कि अमेठी छोड़ के भाग रहे हैं राहुल गांधी, भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो स्मृति ईरानी के हाथों हार जाएंगे। इन दी एंड डू यू फील कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना कैलकुलेशन किया था राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाने का और आपको अमेठी से लड़ाने का, वो कैलकुलेशन एक्चुअली बिल्कुल सही था? नहीं, देखिए, मतलब ये जो आप कह रही हैं ये तो मेरे को पता नहीं इसके पीछे क्या ग्राउंड है। मैं तो लास्ट मोमेंट तक गांधी परिवार का वेट कर रहा था। हाँ। ठीक है, तो मैं नॉमिनेशन की तैयारी में था, यहाँ सारा कुछ कर लिया था, लेकिन अब इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, क्योंकि प्रियंका जी ने विश्वास किया मेरे ऊपर, सोनिया जी ने विश्वास किया, राहुल जी ने विश्वास किया मेरे ऊपर, तो मैंने यहाँ जनता की मदद से उस विश्वास को तोड़ा नहीं, और जनता ने मेरे को संबल दिया कि मैं उस विश्वास के ऊपर उनके खरा उतरा।